Namaha. Let's start with the lecture. So as we have completed Vidyarthamala in the previous lecture, today let's start with the grammar topic, that is Vidhiling Lakarah. So Jay and Riddhi, I know about your school unit test. We are going to deal with Vidhiling Lakar today itself, and it is very simple and small grammar topic. So we'll complete it today itself. Okay, everybody, are you with me? So do you remember we have learned Lot Lakarah in the last month? Before doing that tables, we have learned Lot Lakarah. Yes. तो लोट लकार जो है वैसे ही विधिलिंग लकार इज विद्यर्थ. लोट लकार इज आज्ञार्थ फॉर ऑर्डर and vidhiling lakar is for blessings, for advice, for request, for future assumptions. ये सबके लिए हम यूज करने वाले विधिलिंग लकार, जिसको इंग्लिश में हम मॉडल ऑक्सिलरीज भी बोलते हैं, जहाँ पे हम कुड, वुड या फिर मे ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं, वैसे ही संस्कृत में हमें विधिलिंग लकार यूज करना है. Soham Vidiling Lakar is not there in Sunday's test. The syllabus is already decided. The paper is already set. Is ready. Okay. So जितना भी मैंने mention किया syllabus में उतना ही syllabus होगा for unit test. Do you want me to repeat the syllabus? The syllabus is first you have चित्रपद कोश, उसमें सिर्फ occupations यानी कि जो second page है उतना ही आपको learn करना है. Occupations वृत्तयः. Then next 51 to 100 संख्या. After that समयः. Lesson number 3 किम मिथ्या किम वास्तवम. पोएट्री सेक्शन में अव्ययमाला बाय हार्ट भी करना है, कंप्लीट द वर्ड्स भी आएगा, ट्रांसलेशन भी आ सकता है, एंड संस्कृत क्वेश्चन आंसर्स विल बी देयर. And the last section is grammar section, which will be about dhatu sadit avyayani and ukaranta and rukaranta namani. What is ukaranta namani? यानी कि भानु, धेनु, मधु जैसा कोई भी टेबल लिखने के लिए आ सकता है या फिर कंप्लीट द टेबल आ सकता है. एंड ऑफ कोर्स रुकारांत मींस पितृ एंड मातृ जैसा कोई भी एक टेबल आपको लिखने के लिए आ सकता है. सो बस इतना ही आपके संडे के टेस्ट में है. क्लियर? Okay, now let's focus on Vidhiling Lakar. So just as Lot Lakar, Vidhiling Lakar is something related to modal auxiliaries. So first here we have Vidhiling Lakarah. उसका ही दूसरा नाम है विद्यर्थः. एंड ग्रीन कलर के बॉक्स में आपको दिख रहा है विद्यर्थः का वहां पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है विधि प्लस अर्थः. अभी ये जो विधि प्लस अर्थ है वो उसको स्प्लिट करके दिया हुआ है. ऑल्सो ये जो विद्यर्थ है कहाँ कहाँ पे यूज करना है वो भी दिया हुआ है. उपदेश मीन्स एडवाइस, whenever you are giving advice you have to use the क्रियापद in विद्यर्थ. आशीर्वाद मतलब इफ यू आर गिविंग ब्लेसिंग्स टू समवन, गॉड ब्लेस यू अगर आपको बोलना है तो उसके लिए जो भी आप वर्ब यूज करोगे ब्लेसिंग्स का, वो आपको विद्यर्थ के फॉर्मेट में यानी कि विद द एंडिंग्स ऑफ विधिलिंग लकार आपको लिखना है. प्रार्थना, इफ यू आर प्रार्थना मतलब यहाँ पे प्रेयर नहीं है, प्रार्थना मतलब रिक्वेस्ट. वहां पे नोट डाउन कर लो टेक्स्ट बुक में, प्रार्थना मीन्स रिक्वेस्ट. सो इफ यू आर रिक्वेस्टिंग समथिंग टू समवन, देन वो रिक्वेस्ट करने वाला जो भी आपका क्रियापद होगा वो भी आपको विधिलिंग लकार में लिखना है. Then we have कर्तव्यम मतलब responsibilities. If you are describing responsibilities or some particular specific responsibility of others, then also you have to use विधिलिंग लकार. Then we have shakyata. Shakyata and bhavishyat kala nirdesha is one and the same. Bhavishyat kala means future and shakyata means assumptions, possibilities. Okay, so if you have to denote the future assumptions or possibilities, then also you have to use vidiling lakar.
So basically Vidhiling Lakar Kriyapad will be used as advice, as blessings, as request, as possibilities and future assumptions. Now you can observe few examples there. Jivet Sharadah Shatam. Jivet means live long, and it is the Ashirvad. Generally this particular blessing is always given on birthday. Jivet Sharadah Shatam. हिंदी में हम बोलते हैं 100 साल जिए, लंबी उम्र मिले, ऐसे जो हम बोलते हैं उसको ही यहाँ पे बोला गया है जीवेत, लिव लॉन्ग. शरदह शतम, शतम मीन्स 100, शरदह ऑलवेज, हैप्पीली. सो इट इज अ टाइप ऑफ आशीर्वाद जहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो पिंक कलर में विधिलिंग लकार यूज किया गया है. अभी राइट साइड में देखना है द सेकेंड एग्जाम्पल. प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रे मित्रवत आचरेत. दिस इज अ कर्तव्यम. कर्तव्यम मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी. प्राप्ते तु षोडशे वर्षे, at the age of 16 years. Just a minute. When the child is of 16 years old, जब वो 16 years का हो जाता है, then पुत्र मित्रवत आचरित, then father should behave like a friend with son. अपने बेटे के साथ उनको फ्रेंड जैसा रिलेशन अभी मेंटेन करना चाहिए, बिकॉज वो थोड़ा यंग हो गया है एंड इसीलिए उसको कोई फ्रेंड चाहिए, तो फादर को ही उसका फ्रेंड बनना चाहिए. दिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फादर एंड हेंस हियर आचरित. आचरित मतलब फादर शुड बिहेव लाइक फ्रेंड टू द सन. सो यहाँ पे जो वर्ड यूज किया है आचरित इज अगेन अ विधिलिंग लकार. थर्ड देखेंगे लभेत सिकतासु तैलम अपि यत्नतः पीडयन. इट इज अ शक्यता, पॉसिबिलिटी. लभेत मतलब यू वुड गेट, आपको मिल जाएगा. क्या मिल जाएगा? सिकतासु तैलम यत्नतः पीडयम मतलब जो सैंड होती है, रेत होती है, उसमें से आपको तेल भी मिल जाएगा अगर आपने थोड़े एफर्ट्स लिए, कुछ इंटेलिजेंस यूज किया. सो यहाँ पे लभेत यूज किया है टू शो द शक्यता, पॉसिबिलिटी, कि पॉसिबल है, अगर आपने प्रयत्न किए तो आप रेत से भी तेल निकाल सकते हो. देन नेक्स्ट है मतिमान स्वस्थानम न परित्यजेत. ये आपने पोएम में देखा हुआ है. न परित्यजेत मतलब शुड नॉट गिव अप. दिस इज एडवाइस. यू शुड नॉट गिव अप योर प्लेस इफ यू आर अ वाइज पर्सन. अगर आप बुद्धिमान हो तो आपको पता है आपकी जगह कहाँ पे है, और वो प्लेस जो आपको अच्छे से आता है वो कभी भी छोड़ना नहीं है. नेक्स्ट है फिफ्थ में आप देख सकते हो भविष्यत काल. अहम अभिनेता अभिनेत्री भवेयम. मैं एक्टर या फिर एक्ट्रेस बनूंगी या बनूंगा. सो ये एक भविष्य काल का एजम्पशन है, फ्यूचर एजम्पशन. एंड लास्ट है छात्र प्रत्युषे उत्तिष्ठेत. तो प्रत्युषे जो वर्ड यहाँ पे यूज किया हुआ है दैट इज अ मॉर्निंग. स्टूडेंट्स हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. एक उपदेश है, एडवाइस है. तो अलग अलग चीजों के लिए यहाँ पे विधिलिंग लकार यूज किया गया है इन संस्कृत. नाउ हाउ टू फ्रेम द क्रियापद of Vidiling Lakar that is given below in yellow and green table. As you know, every Lakar have two tables. First is Parasmay Padam and next is Atmane Padam. So here we have first table, yellow table, that is of Parasmay Padam. उसमें हमें अगेन स्ट्रक्चर सेम ही है, हर एक लकार में स्ट्रक्चर सेम होता है. इत इताम इयुः प्रथमः पुरुषः, इहि इतम इत मध्यमः पुरुषः, इयम इव इम उत्तमः पुरुषः. अगेन राइट साइड में आत्मनेपदम. इत इयाताम ईरन प्रथमः पुरुषः, इथाः इयाथाम ईध्वम मध्यमः पुरुषः, इय इवहि इमहि उत्तमः पुरुषः.
आप डिफरेंस देख सकते हो. इन येलो कलर टेबल द ई इज शॉर्ट एंड इन ग्रीन कलर टेबल द ई इज लॉन्ग, दीर्घ. ओके, ऑलवेज रिमेम्बर ये जो टेबल है, ई जब आप अपने रूट वर्ड के साथ ज्वाइन करोगे देन ई शुड बी लाइक अ मात्रा. ई को मात्रा में कन्वर्ट करना है. कैसे? तो वो नेक्स्ट टेबल में दिखा हुआ है. अभी सबका ध्यान चाहिए पठ के टेबल पर. पठ एक पप है. पप इंडिकेट्स कि ये परस्मय पद है एंड ये फर्स्ट ग्रुप का है. सो आई होप बाय नाउ यू रिमेम्बर कि 1 4 6 10 अ ये उसमें ऐड करना है हमें. तो पठ के बाद मैंने अगर अ ऐड किया देन इट विल बिकम पठ, ठ कंप्लीट. जस्ट अ मिनट, आई विल शो यू बाय राइटिंग. Oh, okay. I don't have that option of whiteboard today. No problem. We'll just discuss. Okay. So just try to understand. पठ, ठ जो हाफ है उसके बाद अगर मैंने अ ज्वाइन किया then it will become पठ, ठ complete. After that अगर मैंने ऊपर का जो एक एंडिंग है वो ज्वाइन किया इत, तो मुझे लिखते वक्त पठेत लिखना है, नॉट कि पठित. ओके, नो, यू डोंट हैव टू राइट डाउन पठित. ई है इसीलिए पठित नहीं लिखना. आपको लिखना है पठेत. ई चेंजेस टू मात्रा, इसलिए आप ऑब्जर्व कर सकते हो पठ प्लस इट बिकम्स पठेत. आफ्टर दैट पठेताम पठेयुहु प्रथमः पुरुषः. सो अगेन इताम एंड इयुहु के लिए मात्रा यूज किया गया है. लाइकवाइज पठेहे पठेतम पठेत मध्यम पुरुष, पठेयम पठेव पठेम उत्तमः पुरुषः. सेम आप रम के लिए भी देख सकते हो. रमेत रमेयाताम रमेरन प्रथम पुरुष, रमेथाहा रमेयाथाम रमेध्वम मध्यम पुरुष, रमेय रमे वही उत्तम पुरुष. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि रम इज ऑफ फर्स्ट ग्रुप एंड आत्मनेपदम मेंशन किया हुआ रहेगा एग्जाम में. तो आत्मनेपदम है, सो यू शुड नो द टेबल ऑफ आत्मनेपदम. ईत इयाताम ईरन एंड वही प्रत्यय, प्रत्यय यानी कि एंडिंग्स आपको यूज करने हैं एंड देन यू हैव टू फ्रेम योर क्रियापद. तो ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले. तालिकम पूरयत, वन हिंट विल बी गिवन लाइक रमेत, ये वर्ड अगर दिया हुआ है तो रिमेनिंग टू फॉर्म्स आपको लिखने हैं रमेताम रमेरन. पुरुष विल बी मेंशन, वो प्रथम पुरुष है मध्यम पुरुष है जो भी है मेंशन किया हुआ रहेगा. ठीक है, आर यू गेटिंग मी? चलो, हु इज रेडी टू रीड द प्रत्ययस येलो एंड ग्रीन कलर के बॉक्स? जस्ट रीड करके दिखाने. हु इज रेडी? यस पूर्वा. Hello, ma'am. Yes, start reading Parasmapadam and Atmanepadam, only pratyayas. इत इताम इयुः प्रथमा, इयः इतम इत मध्यमा पुरुषः, इयम इव इम उत्तमः पुरुषः. Yes, very good बेटा, perfect. सिर्फ प्रथमा मत बोलना, प्रथमः पुरुषः. Okay, ma'am. Yeah. Okay, now next Atmanepadam, green table. इत Yes. इयातम इत इयातम इरन प्रथमा पुरुषः, इथाः इयाम इयाथाम इद्वम मध्यमः पुरुषः, इय इवहि इमहि उत्तमः पुरुषः. Very good, perfect. Yes, now below that you have the table of Patha and Rama. So according to Patha, quickly open your notebook. ऊपर लिखना है विधिलिंग लकारः and you have to write down the table of hasa, ha and sa, like Patha. Hasa is first group Parasmay Padam.
So I hope you have started writing the table. Okay. Okay, so before starting, I would like to just show you something. This is, you can observe, it is Hasa is of first group Parasmay Padam. Then here you have Labha, Ek Apa. Quickly write it down in your notebook. Then you have Katha, 10 Papa, and after that Hana, fourth group Atmanay Padam. You have to solve all the 4 tables now itself in the lecture. एक मैंने यहाँ पे आपको हिंट दिया हुआ है, यू कैन ऑब्जर्व हस प्लस अ. आई हैव मिक्स्ड अ बिकॉज हस इज फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप एंड देन ईत, सो इट विल बिकम हसेत. इट विल बिकम हसेत. सो लाइकवाइज आपको अदर फॉर्म्स बनाने हैं एंड डोंट फॉरगेट टू ऐड दिस अ. कभी अ ऐड होगा, कभी य ऐड होगा. सो अ य अ य. In this manner you have to add it. ओके सबने नोट कर लिया है कौन कौन से धातुस लिखने हैं. स्पेलिंग मिस्टेक ना हो इसीलिए मैंने आज ऐसा दिखाया, बिकॉज टुडे आई डोंट हैव एनी टूल टू राइट डाउन ऑन द स्क्रीन. डन. ओके चलो, हु इज रेडी विद द टेबल ऑफ हस? संध्या. यस संध्या, स्टार्ट रीडिंग द टेबल ऑफ हस. Hello, ma'am. Yes, Sandhya. Have you completed the table of Hasa? Yes. Okay, start reading it. हसेत हसेताम हसेयुः प्रथमः पुरुषः. हसे हसेतम हसेतः मध्यमः पुरुषः. हसेयम हसेव हसेम उत्तमः पुरुषः. Okay, very good, perfect. सिर्फ वो जो पहला हसेत है उसको हसेत नहीं बोलना है, हसेत. तो इज हाफ. ओके कीप इट अप संध्या. आगे के टेबल्स भी कंप्लीट करो सब लोग. नेक्स्ट टेबल हम लेने वाले हैं कथ 10 पप. कथ 10 पप. अभी ठीक से ऑब्जर्व करो. कथ इज ऑफ 10th ग्रुप. सो आपको यहाँ पे पूजा का टेबल ऑब्जर्व करना है. ओके सो जय इज आस्किंग 1 4 6 10 नंबर्स एग्जाम में दिए होंगे क्या? तो यस, इंफॉर्मेशन अबाउट द धातु इज ऑलवेज गिवन इन एग्जाम, 9th एंड 10th बोथ. मतलब जैसे मैंने अभी आपको लिख के दिया ना, हस एक पप, कथ 10 पप, लभ अगेन एक पप, हन 4 आप. लाइकवाइज हर एक बार इंफॉर्मेशन दी हुई रहेगी. ऑल्सो टेबल भी आधा बना के दिया हुआ रहेगा. So don't worry, you need to just by heart the endings. येलो एंड ग्रीन टेबल जो है वो आपको बाय हार्ट करना है. क्विकली कंप्लीट द टेबल ऑफ पूजा, सॉरी कथा, like Pooja. Who is ready for the table of Katha? Quickly raise your hand. Yes, Ankita is ready. Okay. Yes, Ankita, unmute yourself. Hello, Miss. Yes. Start reading. कथयेत कथयेताम कथयेयुः प्रथम पुरुषः. कथयेयेह कथयेतम कथयेत मध्यमः पुरुषः. कथयेयम कथयेव कथयेम उत्तमः पुरुषः. ओके अंकिता, परफेक्ट रीड किया आपने. लिखा परफेक्ट है सब, बट मध्यम पुरुष एक वचन देखो.
आपने कथये एंड देन 2 डॉट्स दिए, राइट? यस। हाँ, तो उसको रीड करना है कथये है, पूजये है और ओके कथये है. यस. ओके। ओके, थैंक वेरी यू। गुड अंकिता. थैंक यू मैम। स्टूडेंट्स, स्टार्ट राइटिंग द थर्ड टेबल. लभ, लभ इज एक आप, तो आपको ग्रीन कलर के जो सफिक्सेस है वो अभी यहाँ पे फोकस करने हैं. लभ एक आप, द टेबल विल बी लाइक रम. Yes, Riddhi. Hello. Yes, the table of labha. लभेत लभेयतां लभेरन् प्रथमः पुरुषः लभेताः लभेयाथां लभेद्वं मध्यमः पुरुषः लभेय लभेवहि लभेमहि उत्तमः पुरुषः. Very good, very good. Perfect ekdam. Thank you. Okay. Next, the last table, hana, 4 apa. Students, this time it is 4th group. So you have to observe mana का table. And ये जो है वो पहले वाले कॉन्सोनेंट के साथ व्यंजन के साथ मिक्स होने वाला है. जैसे मन्य हुआ वैसे हन्य होगा. एंड हन्य के बाद you have to add other endings. So who is ready for the table of hana? Jay, would you like to try the table of hana? Chalo, quickly, last 2 minutes. Shreyas, Shreyas Sawant. Teacher, wait for 2 minutes. Okay. Complete the table and then read, okay? Okay. Teacher. 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 Ma'am. Am I audible to you, students? Yes. Okay. Teacher, can I Shreyas, start? are you ready with your answer? Yes. Yes. Start. हन्येत हन्येयातां हन्येरन् प्रथमपुरुषः हन्येथाः हन्येयाथां हन्येध्वं मध्यमपुरुषः हन्येय हन्येवहि हन्येमहि उत्तमपुरुषः. Okay. Correct. Correct. Okay. Very good, Shreyas. So in this manner, students, you have to practice for again and again. I'm saying yellow and green color का जो बॉक्स है वो आपका बाय हार्ट होना चाहिए, तभी आप ये सब जो टेबल्स हम लिख रहे हैं वो विदाउट सीइंग एनीथिंग कंप्लीट कर सकते हो. Okay, now we'll move ahead based on Vidiling Lakar. We have a few more questions to complete, and that Vidiling Lakar is a connected part of the lesson Kim Kuryat and Kim Bhavet. जैसे लोट लकार was connected with Kim Karawani, और तभी हमने वो sentences भी read किए थे 15 sentences. So likewise now we have to apply simple क्रियापदस to the sentence part. देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है. So this particular part Kim Kuryat Kim Bhavet, basically it is the application of Vidiling Lakar into sentence form.
तो सबसे पहला पिक्चर आप देख सकते हो, वहां पे गार्बेज बिन्स दिख रहे हैं हमें. सो जनाः आर्द्रम शुष्कम च अवकरम पृथक क्षिपेयुः. जनाः पीपल, आर्द्रम मीन्स वेट एंड शुष्कम मीन्स ड्राई, अवकरम कचरा गार्बेज, पृथक क्षिपेयुः अलग अलग, पृथक मतलब अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट, क्षिपेयुः यानी कि should put or throw. So people should throw the wet garbage and dry garbage by differentiating it or in the different bins. Are you getting? So यहाँ पे क्या दिया हुआ है? Quickly tell me. Order है, advice है, order या advice? Yes, it is a order. You should do this. सबको रूल्स फॉलो करने हैं. तो रूल्स एंड रेगुलेशंस बताने के लिए सबसे पहला यहाँ पे विधिलिंग लकार यूज किया गया है. नेक्स्ट है त्वम भ्रमण ध्वनि ना अधिक समयम न क्रीडे है. त्वम मीन्स यू, भ्रमण ध्वनि ना. क्विकली टेल मी व्हाट इज भ्रमण ध्वनि. योर फेवरेट डिवाइस, राइट, इट इज मोबाइल फोन. अधिक समयम मीन्स फॉर अ longer time. न क्रीडे है, you should not play. You should not play for on mobile for a longer time. Then next we have अद्य आरभ्य वयम आदिनम पठेम. अद्य आरभ्य from today. आज से वयम we all आदिनम पठेन. हम लोग एक साथ पढ़ाई करेंगे. सो आज से हम लोग एक साथ पढ़ाई करेंगे मतलब क्या है? फ्यूचर एजम्पशंस कि आज से करेंगे और आगे भी करते रहेंगे. फ्यूचर एजम्पशंस. श्वः अहम पुस्तकम आनेयम आनयेयम. श्वः मीन्स टुमारो, पुस्तकम मीन्स बुक, आनयेयम मतलब शायद मैं कल बुक लेके आऊंगा, पॉसिबिलिटी, और फ्यूचर एजम्पशंस बोथ. आनयेयम, इसीलिए यहाँ पे विधिलिंग लकार यूज किया है. एतम तालम युवाम पुनः पुनः वादयेतम. एतम तालम, तालम मीन्स दिस ट्यून, पुनः पुनः अगेन एंड अगेन. युवाम मतलब यू बोथ, वादयेतम मतलब बजाना है. ये ट्यून आपको फिर बार बार बजाना है. यहाँ पे टीचर दोनों को कुछ ना कुछ एडवाइस दे रहा है टू गेट मोर प्रिसाइज इन सिंगिंग. आफ्टर दैट आवाम फलके सुभाषितम लिखेव. यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टिंग टू द टीचर. आवाम, हम दोनों मिलके बोर्ड पे सुभाषित, सुविचार, कोटेशन लिखे. क्या लिखे? वो परमिशन नहीं बोल सकते यहाँ पे, रिक्वेस्ट. ओके, प्लीज हम लिखेंगे ये बोर्ड पे, तो चलेगा क्या? ऐसे हम जब रिक्वेस्ट करते हैं, व्हेन वी आर रिक्वेस्टिंग, तभी भी ये यूज किया है, लिखे वो. ओके, सो दीज आर द एप्लीकेशंस. वो अलग अलग सेंटेंस में आपको यूज करने हैं, बट ये जो है आपको पूरा सेंटेंस खुद से नहीं प्रिपेयर करना है. यू हैव टू कंप्लीट द सेंटेंस, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में. So here are 15 sentences given with each and every subject. अभी जो आपने टेबल्स सीखे उसको यहाँ पे आपको यूज करना है. तो आपने हस, कथ, लभ, हन एक्सेट्रा धातु कंप्लीट कर लिया. आई होप सबने 4 टेबल्स लिखे. अभी यहाँ पे आप देख सकते हो पठ एंड रम धातु यूज किया है. सह और भवान, पठेत और रमेत, 2 प्रकार के धातु यूज किए, मतलब एक परस्मै पद का और एक आत्मनेय पद का. और सह, सा, तत्, त्वम, अहम, तौ, ते, युवाम, आवाम, ते, ताहा, तानी, यूयम, वयम, ये सब जो स्टार्टिंग के प्रोनाउंस है, दीज आर द सब्जेक्ट्स. वो सब करता है, डूअर ऑफ द एक्शन. आर यू गेटिंग मी? तो अभी आपको क्या करना है? यू हैव टू कीप डूअर ऑफ द एक्शन एज इट इज and you have to change the kriyapad. You have to change any one kriyapad from the 4 kriyapad tables we have already written. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक बताती हूँ. सह हसेत, सा हसेत, तत् हसेत, तौ हसेताम, ते हसेताम, ते हसेताम. राइट साइड में आना है. ते हसेयुहु,
ताहा हसेयुः, तानी हसेरन्। ब्लू कलर के लाइंस देखने हैं। त्वम हसेः, युवाम हसेतम, यूयम हसेत, अहम हसेयम, आवाम हसेव, वयम हसेम। तो इफ यू आर यूजिंग द परस्मय पद के धातुज और क्रियापद, देन आपको पठ को फॉलो करना है। और इफ यू आर यूजिंग लभ एंड हन आत्मनेय पद के धातुज, देन आपको रम को फॉलो करना है। Subjects will remain constant. Okay, who is ready to tell all the sentences orally? Oral practice करना है हमें। Yes, संध्या। Hello, ma'am. Hello. Would you like to try? Ma'am, this sentence. No. पंचदश वाक्यानि बेटा. 15 sentences are given with patha and rama. Now you have to replace that patha or rama with any verb that you have written. हस, कथ, लब, कोई भी एक वर्ब यूज करके आपको रिप्लेस करना है सेंटेंस को। सः भवान् पठेत रमेत। उसके जगह पे आपको सह हसेत, सा हसेत ऐसे बोलना है। यूज ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन क्रियापद, एनी वन क्रियापद। सः हसेत पठेत रमेत। नहीं, नो नीड ना अभी पठेत रमेत। मैंने क्या बोला, एक सब्जेक्ट यूज करना है, एक क्रियापद यूज करना है। सः हसेत। वेरी गुड, हो गया, एक सेंटेंस बन गया। सेकंड को सेंटेंस सा राइट साइड में देखो अभी। तौ 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 सेकंड तौ सेंटेंस। हसेतौ। हसेता, हसेताम। सा हसेति। ते हसेतौ। ता हसेत्य। तत् हसेत। ते हसेताम। ते हसेतानि। नहीं वेट, हसेतानी किधर है? वेयर इज हसेतानी? 9 सेंटेंस तानी। नो बेटा, नो। हमने सब्जेक्ट्स देखे थे, डू यू रिमेम्बर? एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। ओके संध्या, नो प्रॉब्लम, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ, फिर आप आंसर देना। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव सीन सब्जेक्ट्स ऑलरेडी। सह, तौ, ते, these are the subjects. Sah means he, tau means they both, and te means they all. Sa means she, te means that two girls, and taha means that all girls. Tat means that object, te means that two objects, and tani means all the objects. So simply फिर से देखो, मैं ग्रीन कलर के जो स्टार्टिंग वाले वर्ड्स है उसको बोल रही हूँ। सह, तौ, ते, सा, ते, ताहा एंड तत्ते, तानी, दीज आर द प्रोनाउंस, सब्जेक्ट्स। ही, शी, इट के सिंगुलर, ड्यूअल एंड प्लूरल फॉर्म्स वहां पे दिए गए हैं। तो आपको बस वो एक ही लेटर यूज करना है, एक ही वर्ड यूज करना है वहां पे। सह हसेत मेरा सेंटेंस हो गया। तौ हसेताम दूसरा सेंटेंस हो गया। तीसरा सेंटेंस ते हसेयुहु। चौथा सेंटेंस सा हसेत। फिफ्थ सेंटेंस ते हसेताम। अच्छे से नंबर्स को फॉलो करो। सिक्स सेंटेंस ताहा हसेयुहु। Okay, now are you getting me? No problem Sandhya, it is okay. आपको दोनों भी चीजें पता है, बस आपको अभी मिक्स करनी है। You know Vedic Lakar suffixes, you have your 4 tables ready with you. You also know about the subjects, first person, second person and third person. ग्रीन कलर में दिया हुआ सब थर्ड पर्सन है, प्रथमा पुरुष।
ब्लू कलर में दिए हुए सब सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट्स है, एंड लास्ट में पिंक कलर में जो दिया हुआ है अहम आवाम वयम, दीज आर द फर्स्ट पर्सन यानी कि उत्तमः पुरुषः। चलो ना, हु इज रेडी टू टेल मी ऑल द 15 सेंटेंसेस? सी, 2 वर्ड्स का एक सेंटेंस होना चाहिए, बार बार मैं बोल रही हूँ 2 वर्ड का एक। यस रिद्धि। हेलो मैम। यस रिद्धि। आई एम डूइंग विथ लबे। वेरी गुड, स्टार्ट। तो लभ अगर कर रहे हो तो आपको रम को फॉलो करना है। यस। ओके, स्टार्ट। सह लभेत तौ लभेयाताम ते लभेरन सा लभेत ते लभेयाताम ताहा लभेरन तत् लभेत ते लभेयाताम तानि लभेरन त्वं लभेताः युवां लभेयाथाम यूयं लभेद्वम् अहं लभेय आवां लभेवहि वयं लभेमहि। वेरी गुड, परफेक्ट। थैंक यू। तो अगर आपने ऑब्जर्व किया एवरीवन, उसने करेक्टली एकदम एक एक सब्जेक्ट को चॉइस किया एंड लभ के टेबल में जितने भी क्रियापद उसने यूज किए थे वो उसके साथ लिंक कर दिए। तो परफेक्ट 15 सेंटेंसेस कंप्लीट हो गया। ओके, so in this manner you have to practice for विधिलिंग लकार, that's it। विधिलिंग लकार के मेन क्वेश्चन तालिकाम पूरे। तो सेकंड क्वेश्चन आता है recognize the verb। जब आता है लकारम लिखत तब आपको वर्ब दिया हुआ रहेगा, तो अगर उसमें एंडिंग में ये इतम ईयू इही इतम ये सब एंडिंग्स दिख रहे हैं तो आपको लिखना है कि वो पर्टिकुलर क्रियापद विधिलिंग लकार। ये होता है दूसरा टाइप का क्वेश्चन, रिकॉग्नाइज द वर्ब वेदर इट इज इन विधिलिंग लकार और लोट लकार और लट लकार एक्सेट्रा। एंड थर्ड टाइप का क्वेश्चन इन द ब्लैंक्स आता है, जैसे कि ये सेंटेंस है तो अभी तो आपने कंप्लीट बनाया, 15 हाफ ऑफ दिए हुए रहेंगे, यू हैव टू कंप्लीट इट। तो बस ऐसे छोटे छोटे एक्सरसाइज आपको एग्जाम में आने वाले हैं, बट फॉर दैट एवरीथिंग द बेस इज दैट 2 टेबल्स, द येलो एंड ग्रीन टेबल, दैट इज परस्मय पदम एंड आत्मनेय पदम। ओके, so now who is ready to read yellow and green table once again for the last time? Just read करना है परस्मय पदम एंड आत्मनेय पदम। यस अथर्व सावंत। Unmute yourself. Yes Purva. हेलो मैम। Yes. परस्मय पदम इत इताम इयुः प्रथमः पुरुषः इह इतम इत मध्यमः पुरुषः इयम इव इम उत्तमः पुरुषः। आत्मनेपदम इत इयाताम इरन प्रथमः पुरुषः इथाः इयाथाम इद्वम मध्यमः पुरुषः इय इवहि इमहि उत्तमः पुरुषः। Okay, very good, perfect. Okay, do you have any doubt regarding विधिलिंग लकार now? Jay, 1, 4, 6, 10 these groups are same for परस्मय पद एंड आत्मनेय पद, बट जो वर्ड्स यानी कि जो रूट वर्ड्स हम यूज करते हैं वो डिफरेंट होते हैं। यानी कि पठ जो है, पठ ये परस्मय पद का ही धातु है, वो कभी आत्मनेय पद के पास नहीं जाएगा। पठ कैन नॉट टेक द एंडिंग्स ऑफ आत्मनेय पद एंड लभ और रम कैन नॉट टेक द एंडिंग्स ऑफ परस्मय पद। जो धातु परस्मय पद में है वो परस्मय पद ग्रुप के ही है, उनको आत्मनेय पद में जाने की जरूरत नहीं है, उनको आत्मनेय पद के एंडिंग्स सूट नहीं करते या फिर यूज नहीं करना एज पर द ग्रामर रूल। ओके, एनीथिंग एल्स? ओके, रिद्धि का क्वेश्चन अच्छा है कि हाउ विल गोइंग टू नो अबाउट पप और आप। अगर रिकॉग्नाइज द फॉर्म आया तो आपको
पप और आप कैसे पता चलेगा? बिकॉज यू कैन ऑब्जर्व कि परस्मय पद में भी इथ दिया हुआ है और आत्मनेय पद में भी ईथ दिया हुआ है। तो अभी यहाँ पे सिंपल ये आपको ऑब्जर्व करना है कि परस्मय पद का जो फर्स्ट ईथ है वहां पे त इज हाफ, इथ, इट इज इथ इताम ईयु, एंड आत्मनेय पद का जो पहला ईथ है दैट इज त कंप्लीट। तो जब त हाफ होगा देन इट इज परस्मय पदम, एंड जब त कंप्लीट होगा देन इट इज आत्मनेय पदम। दूसरा और एक डाउट आपके मन में रहेगा कि परस्मय पद के मध्यम पुरुष बहुवचन में, एवरीबॉडी येलो टेबल पे फोकस करो, परस्मय पदम मध्यम पुरुष बहुवचन ईत, अगेन ईत दिख रहा है, तो ये ईत यहाँ पे भी आ रहा है और अगेन आत्मनेय पद में भी आने वाला है। तो फिर कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे कि अगेन ये परस्मय पद है कि आत्मनेय पद है, राइट? तो जब आपको रिकॉग्नाइज द फॉर्म करना है देन देयर इज नो नीड टू रिकॉग्नाइज द पदम, आत्मनेय पद है कि परस्मय पद है वो आपको रिकॉग्नाइज नहीं करना है, आपको लकार रिकॉग्नाइज करना है, वेदर इट इज विधिलिंग लकार और लट लकार और लोट लकार, प्रेजेंट टेंस है कि पास्ट टेंस है कि मॉडल ऑक्सिलरीज है, ये आपको रिकॉग्नाइज करना है। तो इसीलिए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड जब भी रिक्वायर्ड है आत्मनेय पदम एंड परस्मय पदम विल बी already given, information will be provided in your question paper itself, so don't worry. Again and again I'm saying, just by heart yellow and green table, you can solve any question based on vidhiling lakar. Okay, any other doubts? No doubts? Okay, write down your homework now. You have to write down this yellow and green table 5 times in your notebook. 5 times in your notebook. The yellow and green table, Parasmay Padam and Atmane Padam of Vidhiling Lakar. You have to write down 5 times in your notebook. Okay? Noted? Okay, so we'll stop there. Thank you so much. I hope जिनका एग्जाम है उनका पोर्शन अभी डन हो गया है for the exam. Ghatkopar students, please let me know. Didi is saying yes, ma'am. What are the words then for Atmanepadam? जय बेटा, वर्ड्स नहीं होते हैं आत्मनेय पदम और परस्मय पदम में. अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग बेटा, परस्मय पद एंड आत्मनेय पद आर द टाइप्स ऑफ वर्ब्स, not nouns. Why are you asking about noun again and again? आपने लट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार, लोट लकार, 4 लकार सीख लिए, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि लकार इज अबाउट क्रियापद, verb. We are not discussing nouns here. And क्रियापद, जो भी क्रियापद है लाइक पठ, लिख, हस, वो दिया हुआ रहेगा एग्जाम में. डोंट वरी, आपको सिर्फ टेबल कंप्लीट करके आना है, आपको सिर्फ रिकॉग्नाइज करना है कि वो प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट टेंस में है, या फिर वो लोट लकार में है, विधिलिंग लकार में है. दैट्स इट. ओके, आर यू गेटिंग मी नाउ? जय, हाँ जय बाय हार्ट कर लो कि परस्मय पद एंड आत्मनेय पद आर 2 टाइप्स ऑफ क्रियापदस, आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब्स, नॉट नाउन्स. सो वो 1, 4, 6, 10 जो ग्रुप्स है वो वर्ब्स के लिए है बेटा, नाउन के लिए नहीं. ओके, एनी अदर डाउट्स? ओके, रोशन इज आस्किंग अबाउट, ओके आपका ऑनलाइन एग्जाम है तो वो कैसे होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर्स आर टेकिंग ऑनलाइन एग्जाम थ्रू गूगल फॉर्म्स. तो गूगल फॉर्म्स में आपको क्वेश्चंस रहेंगे, इट विल बी अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और अ शॉर्ट आंसर और अ लॉन्ग आंसर, वहां पे तीनों भी ऑप्शंस रहते हैं. सो इन केस ऑफ संस्कृत लॉन्ग आंसर नहीं आएंगे मोस्टली, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टाइप इन संस्कृत फॉर 8th standard or 9th standard students. So maybe
लॉन्ग आंसर्स नहीं आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विल बी गिवन और फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस विल बी गिवन। तो वहां पे मेंशन किया हुआ रहेगा आंसर, आपको बस चॉइस करना है। मल्टीपल चॉइस आपको पता है एमसीक्यूज, 4 ऑप्शंस विल बी गिवन, जस्ट चॉइस योर आंसर। ओके, तो ऑनलाइन टेस्ट इस प्रकार से हो रहे थ्रू द गूगल फॉर्म्स। वहां पे 10 या 20 क्वेश्चंस जो भी होंगे आपको क्विकली सॉल्व करने, उसको गूगल फॉर्म को टाइम लिमिट होता है, तो इधर उधर बस कॉपी पेस्ट करने के लिए या फिर क्वेश्चन आंसर्स, जब भी क्वेश्चन दिखेंगे तब आंसर टेक्स्ट बुक में ढूंढने के लिए भागो मत, बिकॉज टाइम चला जाएगा। मे बी वो पेपर 10 मिनट्स में बंद हो जाएगा, 15 मिनट्स में, एज पर द स्कूल इट इज चेंजिंग। तो इसीलिए प्लीज बी फोकस, अच्छे से रीड द क्वेश्चन, ऑप्शंस दिए हुए रहेंगे तो आंसर सामने आपके, बस आपको थिंक एंड देन राइट द आंसर। ओके, एंड देन जैसे ही आप पेपर सबमिट करोगे देन आपको आपका स्कोर दिख जाएगा। और जो स्कूल्स ऑफलाइन टेस्ट ले रहे, लाइक पेपर विल बी सेंट एंड देन यू हैव टू राइट डाउन ऑन विद पेपर पेन एंड यू हैव टू सबमिट इट, वो तो आपको पूरा ही लिखना पड़ेगा पेपर। ओके, संध्या, अगर आप किम मिथ्या किम वास्तवम में नहीं थे तो प्लीज रेफर द वीडियो फ्रॉम यूट्यूब। Okay, so all the best for your exam, those who have exam, and we'll meet again in the next lecture with the next chapter. Yes, Shreyas, by heart all the endings for lut, lot, vidiling, etc. Okay, thank you so much everyone. Punar milamah.